Good morning, students. Let's finish with the second chapter of democratic politics, Constitution Design. We have already discussed the Constituent Assembly, the group of 299 people who together wrote our Constitution, why the Constitution is still followed, what problems we faced, and all that. Now, we are going to discuss the guiding values of the Indian Constitution. If you noticed, Mahatma Gandhi's name was not included in the Constituent Assembly. He was not a member of Constituent Assembly. But years ago, in a magazine called Young India, in 1931, he wrote what he wanted the Constitution to do. These are some of his writings. This is your book only. What he wrote, he wanted that there shall be no high class and low class of people. All communities should live in perfect harmony. There should be no room in India for the curse of untouchability. He gave Harijan name to the Dalits and untouchables. Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of the Constitution, he took ideas from these words of Gandhiji, what Gandhiji wanted. इसीलिए B.R. Ambedkar talked of equality and reservations for the upliftment of the backward class. उसके बाद on 26th of January 1950, Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, gave his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on August 15th, 1947. 1947 रात को 12 बजे जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने एक फेमस स्पीच दी थी जिसमें ही मेंशन्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. These are few words from that speech. Then if you know and ever notice that हमारा preamble start कैसे होता है, the first words are we the people. ये words हमने लिए थे अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से. कैन यू सी दिस? वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, नेक्स्ट वाला. देन ये वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पेज प्रीएम्बल, उसके फर्स्ट वर्ड्स वी द पीपल से स्टार्ट होते हैं. एंड यू नो व्हाट इज़ अ प्रीएम्बल? प्रीएम्बल is an introduction, a philosophy on which the entire constitution has been built. It provides a standard to examine any law and action of the government, and it is the soul of the Indian constitution. So if we discuss the key points, key features of the Indian constitution, you can see the highlighted words. ये preamble का पेज है, इसके साइड पर जो आपको येलो हाईलाइटेड दिख रहे हैं, we the people of India. The constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers. We the people का मतलब है हम लोगों के representatives हैं. ये जो लीडर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो हमारे ही चुने हुए लोग हैं जो हमारे को गाइड कर रहे हैं कि हमारी कंट्री को कैसे चलाएं. तो पीपल की कॉन्स्टिट्यूशन हो गई. देन सोवरेन, people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. हम सोवरेन मतलब होता है सेल्फ रूल, अपना खुद का रूल. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन कम्स सोशलिस्ट. हमारी कंट्री में, सोसाइटी में गवर्नमेंट शुड रेगुलेट कि हमारी लैंड इंडस्ट्री किस में कितनी डिवाइडेड हो. ये नहीं कि हाँ कोई अंबानी है तो मतलब आधा इंडिया ही खरीद लेगा एज एन सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इतनी ना हो. उनके कोशिश पॉलिसीज़ में हमेशा यही रहती है कि हमारे कंट्री में इक्वालिटी सोशली मेंटेन रहे. Secular, you all did this in your 8th class. Secular citizens have complete freedom to follow any religion and there is no official religion. Then democratic, a form of government जिसमें leaders हमारे अपने चुने हुए होते हैं and they are answerable to us. Then comes republic. The head of the state is an elected person and not a hereditary person. Republic और monarchy में यही फ़र्क है. monarchy में जो एक बार किंग है, आगे उसी का बच्चा, उसी के फैमिली का जो होगा वो आगे रूलर बनेगा. रिपब्लिक में जो भी स्टेट का हेड होता है दैट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन. जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट इलेक्टेड है बाय अ पर्सन ऑफ पीपल. प्रेसिडेंट को वो लोग वोट इलेक्ट करते हैं जिनको हमने चूज़ किया हुआ है. वी चूज़ आवर MPs, MLAs, और ये लोग फिर आगे
प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, और अमेरिका में तो प्रेसिडेंट के लिए ही पूरे पब्लिक इलेक्शंस करती है। देन कम्स जस्टिस, हमारी कंट्री में जस्टिस है, कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी ग्राउंड पर। लिबर्टी, हमारे कंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सबको फ्रीडम है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ्स, टू हैव देयर विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स एंड एक्शंस। देन इक्वालिटी, all are equal before law. Then fraternity, all of us should behave as if we are members of the same family. ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, मिलकर रहना। सो ये की फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रीएम्बल में हाईलाइट होते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. ये आपके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट कम्स इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पुराने जैसे हमारे वेदास हैं या रामायण महाभारत है कि हम इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। विथ टाइम इट नीड्स टू बी अमेंडेड, अमेंडेड मीन्स चेंज्ड quite regularly to keep it updated. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society. हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस हैं, लोगों के एस्पिरेशंस हैं, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन विद टाइम चेंज होनी चाहिए। दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेड, स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल लॉ। सेक्रेड है जी, पूजनीय है, इसको फिक्स होनी चाहिए और इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सो दे मेड द प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। साथ के साथ चेंजेस होते रहने चाहिए सोसाइटी में चेंजेस के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन रखा है, फिक्स नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारी ये भी पॉइंट इसमें डाला था प्रोविजन कि यू कैन डू चेंजेस इन दिस एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। विद दिस अ चैप्टर इज ओवर नाउ।